Hello guys and girls, I hope you all are well and good. My name is Nishant and welcome to the official YouTube channel of AD4IAS. So we were discussing class 6th NCERT of Indian Polity or so called civics. We had discussed chapter 6 till now, but now we have to move on to the chapter 7. In chapter 6 we discussed about the rural administration, so now we would be discussing about the urban administration, and the title is Urban Administration. Urban Administration. Urban Administration का law and order is again by a police station. If the district is small तो वहाँ पर एक police station होगा, नहीं तो अलग अलग wards के कुछ group of wards के अलग police station होगा. Mainly maintenance की बात करें, so the responsibility of maintenance is on the municipal corporation. If I elaborate it comes out to be the responsibilities. It comes out to be the responsibilities of municipal corporation. So the first responsibility of the municipal corporation is to ensure a good sanitation. ठीक है, is to ensure कि there is no spreading of diseases. So वहाँ पर कि the diseases do not break out. अगर आप sanitation अच्छे से रखोगे तो diseases भी नहीं होंगी. कहाँ पर gardens की maintenance है, hospitals कहाँ बनेंगे. So all these are or the maintenance of street lights say. All these are the functions of the municipal corporation. If a city is a bigger city, then we would be having a municipal corporation, and if there is a smaller city, we would be having a municipal council, or in some cases it is also known as municipality. ठीक है, so this is for a smaller city. तो इनका ये फंक्शन होता है. This is the function of the municipal corporation. अब आगे बात की गई है कि there is a ward councillor. Who is a ward councillor? A city is divided into some parts, and these parts are called a ward. The people living in this ward elect a person, and that person from that region is known as a ward councillor. The person from that region is known as a ward councillor. ठीक है, so the first question comes out is who takes decision? Who are the person who decides कि sanitation कैसा रखा जाएगा, diseases ना फैलें, उसको हम कैसे कॉप अप करेंगे, गार्डन्स कैसे मेंटेन करेंगे, हॉस्पिटल्स कैसे मेंटेन करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स कैसे मेंटेन करेंगे. सो ये जो सारे के सारे वार्ड काउंसलर्स हैं, दे वुड मीट अप. ये एक मीटिंग करेंगे और फिर उसके रिगार्डिंग डिसाइड करेंगे. अगर बहुत बड़ा इशू है कि जैसे मान लो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर है तो सारे के सारे मीटअप करेंगे. अगर किसी एक छोटे से वार्ड को लेकर प्रॉब्लम है तो उससे सिर्फ और सिर्फ वार्ड काउंसलर ही डील कर सकता है. कि कहीं पर अगर छोटी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट नहीं जग रही किसी एक वार्ड में, तो उसके लिए पूरे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है. वहां पर सिर्फ उसी जगह का वार्ड काउंसलर, उसके पास कुछ फंड आता है, उससे वो स्ट्रीट लाइट चेंज करवा सकते हैं. ठीक है, सो ये जो काउंसलर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड काउंसलर से ऊपर, वार्ड काउंसलर से ऊपर एक कमिश्नर साहब होते हैं. ठीक है, ये कमिश्नर इनसे सुपीरियर होते हैं. कमिश्नर पूरे के सारे वार्ड्स को संभालते हैं. अगर वार्ड काउंसलर से कोई काम नहीं होता है एंड
तो कमिश्नर के पास जाते हैं और कमिश्नर के साथ एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ विद द कमिश्नर, और ये लोगों का मेन काम क्या होता है? इंप्लीमेंट करवाना. इन लोगों का मेन काम क्या होता है? इंप्लीमेंट करवाना. इन लोगों का मेन काम क्या होता है? डिसाइड करना कि व्हाट इज द इशू एंड हाउ टू कॉप अप. ठीक है, सो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा कहीं ना कहीं पर, ये लेजिस्लेचर का पार्ट होगा कहीं ना कहीं पर, क्योंकि दे वुड डिसाइड द इशू and they would tell what is the solution for it. On the other hand, once the solution has been given, it would be implemented by this commissioner and the administrative staff. Okay? The second question which asked in this chapter through a story is that how decisions are made. What is the procedure followed? The procedure followed is that they meet up and then they decide a budget. What the budget do we have? और फिर उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, सो ऑल द काउंसलर्स मीट अप, दे मेक अ बजट एंड दैट बजट इज प्लेस्ड बिफोर एवरीबडी. इन सब के आगे रखा जाता है. दे डिबेट ऑन इट एंड फर्दर दे टेक अ डिसीजन. सो वार्ड काउंसलर आर इलेक्टेड, मैंने आपको पहले भी बताया था भी, दे आर इलेक्टेड एंड दे आर अपॉइंटेड. ये भी एक डिफरेंस, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन इट. तो दे मीट अप, दे डिसाइड अ बजट एंड दे इंप्लीमेंट इट आफ्टर कीपिंग बिफोर ऑल द काउंसिल, बिफोर द काउंसिल. ठीक है, अब बजट की बात हो रही है तो भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहां से आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है टैक्स से. जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, जैसे होटल्स कुछ टैक्स पे करते हैं, रेस्टोरेंट्स कुछ टैक्स पे करते हैं, वहां से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है, उससे वो ये सब चीजें मेंटेन करते हैं. ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन द स्टोरी इज कि कौन से लोग, कितने सारे लोग होंगे जो इसके अंदर काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं. सो द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड दैट देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स इन इट. देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स इन इट. ठीक है, तो सैनिटेशन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, आपके पास गार्बेज का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वाटर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एक्सक्यूज मी, रोड के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है हमारे पास. तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने मैटर को संभालते हैं. जैसे रोड्स के लिए एक डिपार्टमेंट हो गया, एक हमारे पास वाटर के लिए डिपार्टमेंट हो गया. तो ये हैं जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग. ठीक है, एंड देयर इज अनदर स्टोरी व्हिच टॉक्स अबाउट अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट. उसके अंदर एक लेडी है गंगाबाई, एंड गंगाबाई फाउंड की गार्बेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. शी वेंट टू द वार्ड काउंसलर. सो द गंगाबाई अलॉन्ग विद सम लेडीज वेंट टू द वार्ड काउंसलर. वार्ड काउंसलर सेड कि मेरे को पता है ये प्रॉब्लम है, बट मेरे पास इतना फंड नहीं है, ये पूरे सिटी के लेवल पर प्रॉब्लम है. तो ऐसे करते हैं, हम कल मिलकर कमिश्नर साहब से मिल लेते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं. ठीक है, तो वार्ड जो काउंसलर थे उन्होंने कहा गंगाबाई को कि गंगाबाई आप ऐसे करना, यू टेक विद अस अ लोकल सैनिटेशन इंजीनियर. सो ये विद लोकल सैनिटेशन इंजीनियर के साथ कमिश्नर के पास जाते हैं. कमिश्नर गिव सम एक्सक्यूजेज बट लेटर ही डिसाइड्स कि चलो ठीक है, सारे के सारे डस्टबिन वगैरह मैं रखवा दूंगा, साफ सफाई वगैरह करवा दूंगा, ट्रक्स वगैरह भी भिजवा दूंगा. सो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर. किस तरीके से कम्युनिटी के प्रोटेस्ट के कारण, देखो एडमिनिस्ट्रेशन है, द पीपल हैव मेड यू सिट हियर, वार्ड काउंसलर, अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. आपको इनकी बात माननी पड़ेगी अल्टीमेटली. हाँ, ही इज अपॉइंटेड, बट इनके प्रेशर में आकर इनको भी काम करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पर. सो द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्स अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. First of all, in municipal, what is the function of the municipal corporation? The second, who are the members who take decisions in the municipal corporation? How do they take decisions? And are there any departments or not? So these are the four questions which are to be focused upon. This is the introduction of municipal corporation.
छोटी सिटी में क्या होता है, बड़ी सिटी में क्या होता है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनता है वो वार्ड काउंसलर की हेल्प से बनता है, काउंसिल जो होती है वहां पर उसके हेल्प से बनता है। वार्ड इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड वाला पार्ट वार्ड काउंसलर वाला हो गया। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो अपॉइंटेड होते हैं, ये मीटअप करते हैं आपस में और फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इनका काम इश्यूज को डिसाइड करना है, सॉल्यूशंस को डिसाइड करना है, इनका काम इंप्लीमेंट करना है। ये इलेक्ट होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं और फिर कुछ डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल जिसके अंदर डिस्कस किया। सो वेरी सिंपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जिस तरीके से जो आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करता है। फाइन, so that's all with this lecture. See you in the next lecture. Bye then, take care.